Good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Taluja from Department of Electronics and Communication Engineering from Sister Ratipad, Bhopal. So today we are going to study the topic Quinn-McCluskey minimization technique, whose another name is tabulation method. Again, this is one of the method for minimization of Boolean expressions. So far we have seen the two methods for minimization of Boolean expressions. One is Boolean algebra, in which there are many postulates to minimize any Boolean expressions. And second is Karnaugh map method, that is known as K-map method. That is a graphical method and which use the tables or blocks of 2 to the power n, where n is the number of variable. There is one limitation with Karnaugh map method is that it is very good method when there is a less number of variable. Say if the variable are there till 5 or 6, this method is really a very efficient and effective method. But if the variable increases from 5 or 6, so it is very complicated method, though the number of blocks will increase. As we know that the number of blocks depends on the number of variables. If the variables are n, so blocks required in K-map is 2 to the power n blocks. If there are 5 variables, so we need 2 to the power 5, that is 32 blocks. If there are 6 variables, we need 64 blocks. If we have 7 variables, then we have to make a 128 variables, and that is not feasible for grouping and pairing all the variables in 128 blocks K-map or 256 block K-map. So for that we have used that is Quinn-McCluskey method. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टेबल्स के फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक तो एडवांटेज ये है इस Quinn-McCluskey मेथड से, टेबुलर फॉर्म से जितने भी वेरिएबल्स हमें दिए हो वी कैन इजीली सॉल्व इट फॉर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दूसरा है चूंकि ये टेबल के फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं, तो इट इज मोर एफिशिएंट इन मेकिंग द कंप्यूटर एल्गोरिथम, और कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड द प्रोसेस गिवन इन द टेबुलर फॉर्म. तो हम इस मेथड को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड वी विल गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. सो we'll take one example, that is we have 4 variables a, b, c, d and we have given the minterms, that is 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, we will solve with the step by step. तो स्टेप नंबर 1 में जितने भी मिनटर्म्स हमें दिए गए हैं उन मिनटर्म के रिस्पेक्ट में हम ग्रुपिंग्स करेंगे फ्रॉम द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ 1 से. जैसे कि सबसे पहले ग्रुप में होगा 0 वंस, मतलब वंस जिसमें ना हो या कम हो. फिर नेक्स्ट ग्रुप में होगा नंबर ऑफ वंस 1 हो, नंबर ऑफ वंस फिर 2 एंड सो ऑन, लाइक दिस वी विल मेक अ पेयर. तो सबसे पहले विदाउट स्टार्टिंग द स्टेप वी विल राइट द बाइनरी वैल्यूज ऑफ ऑल द मिनटर्म्स. तो इन दैट इज इन रफ वी हैव टू मेक इट इन द प्रीवियस बिफोर स्टार्टिंग द स्टेप. 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. जैसा कि हमने देखा है कि बाइनरी पॉसिबिलिटीज ऑफ 0 फॉर 4 वेरिएबल्स आर 0, 0, 0, 0. Similarly for 0, 1, that is 1, 0, 0, 0, 1. For 3 it is 0, 0, 1, 1. For 7 it is 0, 1, 1, 1. For 8 it is 1, 0, 0, 0. For 9 it is 1, 0, 0, 1. For 11 it is 1, 0, 1, 1. And for 15 it is 1, 1, 1, 1. Fine. So like this we have to make the binary possibilities, the binary arrangement of all the minterms. अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से. स्टेप नंबर 1 में जैसा मैंने बोला आपको ग्रुप्स बनाने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 वंस एंड देन वी विल इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर. तो सबसे पहले आपका होगा ग्रुप एंट्री, फिर आपके होंगे मिनटर्म, फिर आपका होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चूंकि हमारे पास 4 बिट के नंबर हैं तो वी विल गिव द नंबर्स ABCD अल्फाबेट. इसको हम ग्रुप्स के फॉर्म में मेक कर देंगे.
लाइक दिस। अब हम देखें इसमें कौन सी बाइनरी वैल्यूज है जिसमें नंबर ऑफ वन सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं 0 में नंबर ऑफ वंस एक भी नहीं है, तो दैट विल गिव द ग्रुप 1। तो जिसको हम ग्रुप पहला दे दें, हम स्टार्ट विद द ग्रुप 0, तो इसको मिनटर्म दे दें m0 और उसके रिस्पेक्ट में बाइनरी वैल्यू क्या है 0 0 0 0। तो दिस इज ग्रुप 1। फर्स्ट ग्रुप में जिसको हमने दिया हुआ ग्रुप नंबर 0, उसमें नंबर ऑफ वंस कोई भी नहीं है। नाउ विल सी द नंबर ऑफ वंस एक किस में है। तो नंबर ऑफ वंस एक है, एक तो 1 में है, हम देख रहे हैं सिर्फ एक ही बार 1 आ रहा है। एक हम देख सकते हैं 8 में, 8 में नंबर ऑफ वंस ओनली 1 टाइम आ रहा है, और उसके बाद नंबर ऑफ वंस वंस और कहीं नहीं आ रहा। तो इसको हम नाम देंगे अगला ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 1, और इसके लिए मिनटर्म्स होंगे m1 एंड m8। m1 की पॉसिबिलिटी क्या बाइनरी 0 0 0 1 और 8 की 1 0 0 0। लाइक दिस विल प्रोसीड। नाउ विल स्टार्ट विद द ग्रुप 2। अब देखिए नंबर ऑफ वंस दो कब कब हैं। तो एक 3 में है, एक 9 में है। 3 and 9 are the two binary two decimal numbers or midterms in which there are number of ones 2. We will give midterms m3, m9, m3 है आपका 0 0 1 1 और 9 है आपका 1 0 0 1। Again we will proceed it in the same manner. नंबर ऑफ वंस 3 कहां कहां है। नंबर ऑफ वंस 3 है आपका 7 में और 11 में। तो 7 की वैल्यू क्या होगी 0 1 1 1। m11 की वैल्यू क्या होगी 1 0 1 1। इसीलिए आप पहले से ही एक रफ में इसको बना के रख लेंगे, ताकि जब आप इसको स्टेप नंबर 1 में सॉल्व करेंगे तो वी नॉट हैव टू रिमेंबर इट। जस्ट आप इसमें से देख के आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। लास्ट इज नंबर ऑफ वंस 4 एक ही जगह है, दैट इज m15 1 1 1 1। तो दिस इज स्टेप नंबर 1। हमने एक टेबल बना ली जिसमें हमने स्टार्ट किया नंबर ऑफ वंस 0 से लेके, देन वी हैव मूव टू द नंबर ऑफ वंस 1, देन वी हैव मूव टू द नंबर ऑफ वंस 2, देन वी हैव मूव टू द नंबर ऑफ वंस 3 एंड सो ऑन। फाइन। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, विल मेक द नेक्स्ट टेबल इसके सामने, क्योंकि इस टेबल का हमें यूज करना है इसलिए हम इसको रब नहीं कर सकते। तो स्टेप नंबर 2 में वी विल कंपेयर द ग्रुप्स। कंपैरिजन किस टाइप की होगी, वी हैव टू कंपेयर ग्रुप्स n विद द ग्रुप्स n+1। एग्जांपल, अगर हम ग्रुप 0 की बात करें, अगर 0 हमारा n है तो n+1 क्या होगा 1। तो ग्रुप 0 के हर मिनटर्म को हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 1 के हर मिनटर्म के साथ। सिमिलरली ग्रुप 1 के हर मिनटर्म को हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 2 के हर मिनटर्म के साथ। और कंपैरिजन करते समय हमें यह चेक करना है इन 4 बिट में से 3 बिट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर 3 बिट की वैल्यू सेम है तो वो कंपैरिजन होगा, और जो चौथी वैल्यू चेंज होगी उसकी जगह पे हम लिख देंगे डैश। अगर ऐसा हम हर एक मिनटर्म के लिए चेक करेंगे, और ऐसे मिनटर्म्स जो किसी कंपैरिजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन मिनटर्म्स पे हम टिक नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगा देंगे। और जो मिनटर्म्स हमारे ग्रुप बनाने में या कंपैरिजन करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके आगे हम यहां पर टिक मार्क कर देंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी मीन। स्टेप 2, अगेन वी हैव टू मेक अ सेम टेबल, दैट इज ग्रुप, देन मिनटर्म्स, अगेन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं BR, एंड देन A B C D। यहां पर मैंने मिनटर्म लिखा बिकॉज देयर आर ओनली अ सिंगल मिनटर्म। यहां पर मैंने मिनटर्म्स लिखे क्योंकि यहां पर हम 2 मिनटर्म्स को कंपेयर करेंगे। सपोज ग्रुप नंबर 0 और 1 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम 0 के हर मिनटर्म को ग्रुप नंबर 1 के हर मिनटर्म से कंपेयर करना है। जैसे 0 और 1 को कंपेयर करना है तो हम उसके आगे लिखेंगे m0 m1। तो 2 मिनटर्म है, दैट मींस प्लूरल फॉर्म आ गया मिनटर्म्स। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 और 1 को। तो 0 और 1 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखते समय हमें ये देखना है 3 बिट सेम होने चाहिए, चौथा बिट डिफर होना चाहिए। जो चौथा बिट डिफर होगा उस पोजीशन पे हम डैश मार्क कर देंगे। विल सी
0001 0, यहाँ पर 0001, तो फर्स्ट 3 बिट सेम है 000, चौथा बिट जो चेंज हो रहा है उस पोजीशन में हम डैश पुट कर देंगे। तो मिनटर्म M0 एंड M1 इज कंपेरेबल। तो इस दोनों के ग्रुप को जो कंपेयर कर रहे हैं इसका ग्रुप नाम दे दें हम ग्रुप 0, और हम लिख देंगे मिनटर्म M0 M1। M0 M1 के आपकी कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं? 000, और जो डिफरेंस टर्म है दैट इज 1, तो 1 0 और 1 की जगह हम लिख देंगे डैश। सिमिलरली वी विल कंपेयर विद 0 एंड 8। 0 एंड 8 में हम कंपेयर करें तो लास्ट के 3 बिट सेम है, फर्स्ट बिट डिफर है तो जो बिट डिफर है उसकी जगह डैश, और जो बिट सेम है वो एज इट इज। तो M0 M8 इट इज डैश 000। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ कंपैरिजन, क्योंकि हमने M0 का जो एक मिन टर्म था उनके M1 के दोनों मिन टर्म के साथ कंपेयर कर लिया। क्लियर है? इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे अब 1 को 2 के साथ। हम 0 को 2 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन का कंसेप्ट हमारा क्या है? n को n+1 से कंपेयर करना है, ना कि n ग्रुप को n+2 या n+3 से कंपैरिजन करना है। फाइन, तो 1 को हम 2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगेन कंसेप्ट हमारा वही रहेगा, 3 बिट सेम होंगे, चौथा बिट डिफर होगा, जो चौथा बिट डिफर होगा उस पोजीशन पे हम डैश मार्क कर देंगे। अगेन चेक M1 और M3, ये जरूरी नहीं है कि हर मिन टर्म एक दूसरे के साथ कंपेरेबल हो, कई बार एक की जगह 2 बिट डिफर होंगे, जब 2 बिट डिफर होंगे तो विल नॉट मार्क दैट मिन टर्म इन दिस टेबल। फाइन, सो विल सी M1 एंड M3। M1 और M3 में देखिए फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट बिट इज सेम, तो हम इसका पहले मिन टर्म लिख दें M1 M3, इसको नाम दे दें ग्रुप नंबर 1। तो इनके वैल्यूज तो क्या सेम है 00-1 00-1। सिमिलरली चेक विद M1 M9। M1 M9 में चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट बिट डिफर है, बाकी 3 बिट सेम है, तो फर्स्ट बिट जो डिफर है आपका दैट इज डैश 001। नाउ वी हैव टू कंपेयर 8 विद 3। 8 3 के साथ जब कंपेयर करेंगे we will check first bit is changing, third bit is changing, fourth bit is changing। 3 बिट चेंज हो रहे हैं, जब एक से ज्यादा बिट चेंज होंगे तो विल नॉट कंसीडर दैट केस, तो M8 M3 कंपैरिजन नहीं होगा उन दोनों के बीच का। नाउ विल चेक M8 एंड M9। M8 और M9 में हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है, दैट इज 1 0 0, और चौथा बिट जो डिफर है दैट इज उसकी जगह हम डैश लिख देंगे, दैट इज M8 M9। So this is group number 1। Similarly you will have to proceed for the other groups। अब हम चेक करेंगे ग्रुप नंबर 2 और 3 को। ग्रुप नंबर 2 और 3 को चेक करते हैं, तो 3 और 7 में हम देख रहे हैं कि सेकंड बिट चेंज है, रेस्ट ऑल आर सेम, दैट इज 0-11, दैट इज 3 and 7 M3 and M7। गिव इट नेम ग्रुप 2। Now we'll check M3 M11। M3 M11 में हम देख रहे हैं फर्स्ट बिट डिफर है, बाकी सब सेम है, तो इट इज डैश 011, दैट इज M3 and M11। Now we'll check 9 with 7। अगर हम 9 को 7 से चेक करते हैं तो we'll see फर्स्ट बिट इज चेंजिंग, सेकंड बिट इज चेंजिंग, थर्ड बिट इज चेंजिंग। 3 बिट चेंज हो रहा है, दैट मींस कंपैरिजन नहीं होगा। 9 को 11 से कंपेयर करें तो फर्स्ट बिट इज सेम, सेकंड बिट इज सेम एंड लास्ट बिट इज सेम, और थर्ड बिट जो चेंज हो रहा है उसकी जगह हम डैश लिख देंगे, तो ये आएगा 10-1 10-1। ये आपकी कॉम्बिनेशन क्या है? M9 M11। दिस इज ग्रुप नंबर 2। नाउ लास्ट यू हैव टू कंपेयर ग्रुप नंबर 3 विद ग्रुप नंबर 4, और इसको नाम दे देंगे हम ग्रुप नंबर 3। तो हम चेक करें M7 को M11 से कंपेयर करें तो लास्ट के 3 बिट सेम है, फर्स्ट बिट चेंज हो रही है, तो फर्स्ट बिट जो चेंज हो रही है इसकी जगह डैश एंड देन 111, और उसके आपके मिन टर्म्स क्या होंगे? M7 एंड M15। सिमिलरली we'll check for M11 and M15। M11 और M15 में आपका सेकंड बिट चेंज हो रहा है, रेस्ट ऑल आर सेम, तो हम क्या लिखेंगे 1-11।
तो आपका आ जाएगा ये M11 M15. Like this we had completed the comparison of all the groups and their individual minterms. ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 2 है. अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन से मिनटर्म स्टेप नंबर 1 के हैं जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया फॉर मेकिंग द सर्टेन ग्रुप्स. जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके आगे हम क्रॉस पुट कर देंगे और जिनने पार्टिसिपेट किया उनके आगे हम टिक पुट कर देंगे. तो जीरो ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, M0 ने, वी कैन सी हियर M0 we will put tick here. Similarly M1 has participated, M1 ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, कहीं एक जगह भी पार्टिसिपेट किया तो हम टिक पुट कर देंगे. M8 ने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, we will put tick here. M3 ने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, we will put tick here. M9 ने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, we will put tick here. M7 ने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, we will put tick here. M11 ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, we will put tick here. M15 ने भी पार्टिसिपेट किया नीचे, we will put tick here. That means all the minterm has participated. इस टिक का कंसेप्ट क्या है हम आगे देखे समझेंगे आगे जाके. Fine. Now step 2 is completed. अब सेम प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन हम करेंगे इन स्टेप 3 जब हम स्टेप 2 के n और n+1 ग्रुप को कंपेयर करेंगे. तो नाउ वी हैव टू मेक अनदर टेबल. तो हम स्टेप नंबर 1 की टेबल को रख कर देते हैं. Now we'll make another table for step 3. Step 3 के लिए another table entries वही होंगी हमारी. Group minterms, क्योंकि एक से ज्यादा minterm है तो minterms हो जाएगा. Binary representation BR short में and variables are ABCD. Now we'll compare group number 0 to 1, 1 to 2 and 2 to 3. अब यहां पर कंसेप्ट क्या रहेगा, यहां पर हर जगह एक डैश है और 3 बाइनरी वैल्यूज हैं. सबसे पहले हमें चेक करना है ये हर ग्रुप के मिनटर्म्स वाले, ये पेयर में मिनटर्म्स है तो पेयर और पेयर जब मिलेगा तो हो जाएगा क्वाड. ठीक है, तो दो पेयर तब कंपैरिजन हो पाएंगे उनका सबसे पहले जब डैश की पोजीशन सेम होगी. अगर डैश की पोजीशन सेम होगी तो हम आगे प्रोसीड करेंगे. अगर डैश की पोजीशन डिफरेंट है तो हम उस मिनटर्म वाले पेयर को वहीं छोड़ देंगे, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे. अगर डैश की पोजीशन सेम है तो वी विल चेक फॉर द रिमेनिंग 3 बिट्स, और रिमेनिंग 3 बिट्स में अगर 2 बिट की पोजीशन अगेन सेम है तो हम उसको कंसीडर करेंगे और जिस तीसरी बिट की पोजीशन डिफर है उसकी जगह हम डैश पुट कर देंगे. फाइन, वी विल सी इन दिस. सो सबसे पहले हम 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं. 0 और 1 को कंपेयर करने के लिए हमने ग्रुप का नाम दे दिया 0 m देन ग्रुप 0. सबसे पहले वी विल चेक इट. M0 और M1 का जो डैश की पोजीशन थी लास्ट की पोजीशन यहां नहीं है, यहां पर थर्ड पोजीशन है, तो ये इससे कंपेयर नहीं होगा. फिर ये वाला इससे भी कंपेयर नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन लास्ट है और इसकी पोजीशन फर्स्ट है. फर्स्ट एंड लास्ट सेम पोजीशन नहीं है. नाउ दिस विल कंपेयर विद दिस. फाइन, क्योंकि आपकी जो M0 M1 की जो पोजीशन है दैट इज लास्ट और M8 और M9 की है वो भी लास्ट है. तो एक क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया कि डैश की पोजीशन सेम हो गई. नाउ विल सी द रेस्ट 3 बिट्स. रेस्ट 3 बिट्स में हम देखें, एक है 0 0 0, ये है 1 0 0. तो सेकेंड एंड थर्ड बिट इज सेम एंड द फर्स्ट बिट इज चेंजिंग. तो जो फर्स्ट बिट चेंज हो रहा है उसकी जगह भी हम डैश पुट करेंगे. तो लेट्स सी, विल राइट M0 M1 M0 M1 and M8 M9. चूंकि 4 मिनटम हो गए तो हम उसको क्वाड कह सकते हैं. तो आपकी वैल्यू क्या है, पहला डैश है क्योंकि फर्स्ट बिट इज चेंजिंग, फिर 0 0 एंड डैश पहले था. क्लियर है? नाउ विल चेक फॉर द नेक्स्ट M0 M8. इन सभी से हर एक मेंबर से कंपेयर करना है. तो M8 और M0 का जो फर्स्ट पोजीशन में डैश आ रहा है तो M1 और M3 में थर्ड पोजीशन में डैश आ रहा है. अगेन M1 M3 से कंपैरिजन नहीं होगा. नाउ विल कंपेयर विद M1 एंड M9. तो M1 और M9 में फर्स्ट पोजीशन में डैश है, दैट मींस
फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंप्लीटेड. नाउ विल चेक फॉर द रेस्ट क्राइटेरिया. तो नेक्स्ट क्राइटेरिया में दो बिट सेम है, 0 0, लास्ट बिट इज चेंजिंग. तो हमारा क्या आ जाएगा, डैश 0 0 डैश, अगेन डैश 0 0 डैश. और उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या आपकी, M0 M8 M0 M8 एंड M1 M9. फाइन. तो ये आपका ग्रुप नंबर 0, जो कि ग्रुप नंबर 0 और 1 को हमने कंपेयर किया था, दैट इज कंप्लीटेड. फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, फर्स्ट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, स्टेप नंबर 3. नाउ विल कंपेयर इन द सिमिलर वे फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड 2. ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को जब आप कंपेयर करेंगे, अगेन फर्स्ट वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ डैश. तो इधर M1 और M3 में पोजीशन ऑफ डैश जो है थर्ड पे है. तो थर्ड हम यहां पर देखें, यहां सेकंड है, नहीं होगा कंपेयर. यहां फर्स्ट है, कंपेयर नहीं होगा. यहां पर थर्ड पोजीशन पे, तो यहां पर कंपेयर हो सकता है. फिर हम चेक करें नेक्स्ट बिट्स की पोजीशन. नेक्स्ट बिट की पोजीशन जो है 0 यहां पर है, यहां भी 1 1 है, मतलब दो सेम है, फर्स्ट वाला डिफर है. तो ये कर सकते हैं हम, दैट इज डैश 0 डैश 1, डैश 0 डैश 1. ठीक है. तो आपका इसके लिए आपके मिनटर्म्स क्या होंगे, M1 M3 एंड देन M9 M11. M1 M3 M9 M11. दिस इज ग्रुप नंबर 1, जो हम ग्रुप नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं. सिमिलरली हम चेक करें फर्स्ट पोजीशन डैश, फर्स्ट पोजीशन डैश यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है. ठीक है. और रिमेनिंग बिट्स देखें तो 0 1, ये फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट सेम है, बीच वाला डिफर हो रहा है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, डैश 0 डैश 1, अगेन डैश 0 डैश 1. तो आपका इसके लिए आपकी वैल्यूज क्या है, मिनटर्म्स M1 M9 M1 M9 M3 M11. फाइन. नाउ अब बचता हमारा ये M3 M8 M9. इसमें डैश की पोजीशन लास्ट है. तो डैश की पोजीशन अगर लास्ट है तो हम देखें यहां पर किसी भी मिनटर्म्स में ग्रुप नंबर 2 के लास्ट में डैश नहीं है, तो M8 और M9 कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे हम इसका. नाउ दिस इज कंप्लीटेड. नाउ विल चेक फॉर स्टेप नंबर 2 के ग्रुप नंबर 2 और 3 को देखें, कंपेयर करें. अगेन वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ डैश. तो पोजीशन ऑफ डैश को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है M3 M7 में पोजीशन ऑफ डैश सेकंड है, और यहां पर सेकंड कहां आ रहा है, यहां पर फर्स्ट आ रहा है, यहां पर सेकंड आ रहा है. तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं. फिर यहां पर देखें लास्ट 2 बिट सेम है, फर्स्ट बिट डिफर है, तो हम लिख सकते हैं डैश डैश 1 1, डैश डैश 1 1. और इसके लिए आपकी वैल्यू क्या है, M3 M7 M3 M7 एंड देन M11 M15 M11 M15. इसको हम दे दें ग्रुप नंबर 2 नाम. सिमिलरली हम यहां पर M3 M11 को चेक करेंगे, जिसकी पोजीशन ऑफ डैश फर्स्ट है. फर्स्ट इससे कंपेयर हो सकती है, और उसके रिमेनिंग बिट्स हम देखें तो सेकंड इज चेंजिंग, रेस्ट 2 आर सेम, दैट मींस अगेन डैश डैश 1 1. फाइन. तो आप इसके लिए आपकी मिनटर्म्स क्या होंगी, M3 M11 M3 M11 and then M11 M15, sorry, M3 M11 and then M7 M15, M7 M15. Now we'll check for M9 and M11. M9 और M11 का जो आपका डैश की पोजीशन है वो थर्ड है. तो थर्ड यहां पर ग्रुप नंबर 3 में किसी में भी थर्ड पोजीशन डैश नहीं है, तो ये M3 M11 आगे कंपेयर नहीं कर सकते. फाइन. तो दिस इज स्टेप नंबर 3. अब जैसे हमने पिछले केस में देखा था, स्टेप नंबर 1 में हमने मिनटर्म्स के आगे टिक पुट किया था. टिक पुट का मतलब यह था कि कौन कौन से मिनटर्म्स ने पार्टिसिपेट किया है. यहां भी हम देखेंगे किस किस मिनटर्म के पेयर ने पार्टिसिपेट किया है. जिन जिन ने पार्टिसिपेट किया उनके आगे हम टिक पुट कर देंगे. तो लेट्स सी हियर M0 M1. M0 M1 सबसे पहली पोजीशन पे कंपेयर किया है, इसको हम टिक पुट कर देंगे लाइक दिस, स्मॉल टिक. एंड देन M0 M8 ने भी यहां पार्टिसिपेट किया है, इसके आगे भी हम टिक पुट कर देंगे
नाउ M1 M3 ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर, वी विल पुट टिक हियर अगेन. नाउ M1 M1 और M9 ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया, विल पुट टिक हियर. M8 M9 ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, विल पुट टिक हियर. नाउ अगेन विल चेक इसमें M3 M7 ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, विल पुट टिक हियर. M3 M11 ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, विल पुट टिक हियर अगेन. M9 M11 ने भी पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, विल पुट टिक हियर. M7 M15 ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, विल पुट टिक हियर. एंड M11 एंड M15 ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, we will put tick here. So that means all the minterms or pair of minterms of step number 2 has participated to make the certain comparison in step number 3. ठीक है, तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि फर्दर कंपैरिजन पॉसिबल है. फाइन. तो नाउ द वर्क ऑफ स्टेप नंबर 2 is completed. Now we'll check make the step number 4. स्टेप नंबर 4 में भी कंपैरिजन हमें करना है ऑफ n and n+1 ग्रुप्स ऑफ स्टेप नंबर 3. यहां पर कंसेप्ट वही होगा जो स्टेप नंबर 3 में था कि सबसे पहले हम डैश की पोजीशन चेक करेंगे. अगर डैश की पोजीशन सेम हुई तो हम फर्दर कंपैरिजन करेंगे. तो फर्दर अगर 2 डैश हर जगह है तो 2 डैश की पोजीशन सेम अगर होंगी तो बचे हुए बिट्स होते हैं 2. तो 2 में से अगर एक बिट डिफर है तो उस पोजीशन पे डैश और जो सेम होगा उसकी जगह सेम लिख देंगे. तो सबसे पहले हम चेक करें कि फर्दर कंपैरिजन पॉसिबल है भी कि नहीं है. तो वी हैव टू कंपेयर ग्रुप नंबर 0 to 1 एंड देन 1 to 2. सबसे पहले हम 0 और 1 से कंपेयर करते हैं. तो 0 वाले ग्रुप में आपका जो 0 1 8 9 वाला जो क्वाड मिनटर्म का पेयर है, इसमें जो डैश की पोजीशन है दोनों जगह वो है फर्स्ट और लास्ट. फर्स्ट और लास्ट हम चेक करेंगे ग्रुप नंबर 1 में कहीं किसी मिनटर्म वाले क्वाड में है कि नहीं. तो यहां पर हम देखें फर्स्ट एंड थर्ड है, यहां भी फर्स्ट एंड थर्ड है. फर्स्ट एंड लास्ट कहीं नहीं है और यहां भी फर्स्ट एंड थर्ड कहीं नहीं है. दैट मींस ग्रुप नंबर 0 और ग्रुप नंबर 1 कंपैरिजन दोनों के बीच का नहीं होगा. नाउ विल चेक फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में अगेन वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ डैश. तो ग्रुप नंबर 1 में जब दोनों एंट्री में हमारी पोजीशन ऑफ डैश जो है 1 और थर्ड है सॉरी, और ग्रुप नंबर 2 में दोनों एंट्री में हमारा जो पोजीशन ऑफ डैश जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड में है. तो फर्स्ट और सेकंड इधर भी नहीं है और यहाँ फर्स्ट और थर्ड यहाँ भी नहीं है. दैट मींस फर्दर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है. जब फर्दर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा तो इस प्रोसेस को हम यहीं टर्मिनेट करेंगे. तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ स्टेप्स in step number 1, step number 2 and step number 3. Now the next step is we have to find out the prime implicant, that is शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं PI. What is prime implicant? Prime implicant को हम डिफाइन कर सकते हैं. Prime implicant is a group of minterm. Fine. That is PI is a group of minterm that cannot be combined with any other groups or minterms. मतलब प्राइम इम्प्लीकेंट ऐसे मिनटर्म्स हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ मिनटर्म्स हैं, क्योंकि स्टेप नंबर 2 में जो 1 में जो आया था आपको मिनटर्म अकेला आया था और बाकी स्टेप्स में आपको मिनटर्म्स आए. तो मिनटर्म्स आए तो हम ग्रुप बात करेंगे और वहां पर हम बात करेंगे मिनटर्म की बात करेंगे. इसलिए हम डिफाइन कर रहे हैं प्राइम नंबर इज अ मिनटर्म or a group of minterm which do not combine with any other minterm or group of minterms. ऐसे minterms या ऐसे group of minterms जो अगले ग्रुप पे कंपैरिजन करने में हेल्प नहीं करें. तो हमने देखा था पिछले स्टेप्स में हमने टिक मार्क किए थे. टिक मार्क करने का मतलब यही था कि जो मिनटर्म थे या मिनटर्म्स थे वो अगले ग्रुप को कंबाइंड करने के लिए या कंपेयर करने के लिए मदद कर रहे हैं. अगर वो मदद नहीं कर रहे होते तो हमने कहा था उसकी जगह पे क्रॉस कर दो. तो क्रॉस का मतलब है प्राइम इम्प्लीकेंट, जो कि आगे सहायता नहीं कर रहा आगे कंपैरिजन करने के लिए. तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में किसी जगह पे भी हमारा स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 2 में किसी पोजीशन पे हमारा क्रॉस नहीं था.
दैट मीन्स वहां पर हमारा कोई प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। बट अगर हम चेक करें यहां पर M0, M1, M8, M9 फर्दर आगे कंपैरिजन नहीं कर रहा, कंपैरिजन कर रहा होता तो स्टेप नंबर 4 होता, तो स्टेप नंबर 4 नहीं है, दैट मीन्स दे आर ऑल आर प्राइम इम्प्लीकेंट, मतलब हम दोनों को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इनको इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया कि सबकी बाइनरी वैल्यू सेम है। ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, क्रॉस सिग्निफाइज प्राइम इम्प्लीकेंट। तो पीआई को हम डिफाइन लिख सकते हैं, पीआई इक्वल्स टू उनके बाइनरी वैल्यूज, उनकी बाइनरी वैल्यूज क्या है, चूंकि ये और ये इन दोनों का सेम है, तो विल राइट बी बार सी बार, क्योंकि बी पे 0 और सी पे 0 है, तो फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट इज बी बार सी बार प्लस नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट इज दिस, बी पे 0 है और सी डी पे 1 है, दैट इज बी बार डी। फाइन, नाउ नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट इज, अब इन ग्रुप नंबर 2 के भी दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों आपके जो पार्ट के जो मिड टर्म्स हैं उनकी वैल्यू सेम है, दैट इज सी में भी 1 है, डी में भी 1 है, दैट इज सी डी। सो दिस इज द प्राइम इम्प्लीकेंट्स। नाउ द लास्ट स्टेप रिमेन, इस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक अ टेबल, इस टेबल का नाम हम देंगे प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। तो लेट्स सी द लास्ट स्टेप। प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल, इस टेबल की एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले होंगे हमारे मिन टर्म्स, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मिन टर्म्स की जगह हम लिख सकते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं, तो विल राइट सबसे पहले पी आई, प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमारे क्या क्या हैं, देन इट इज डेसिमल नंबर corresponding to PI, प्राइम इम्प्लीकेंट से करस्पॉन्डिंग कौन कौन से डेसिमल नंबर है, फिर हम लिखेंगे लास्ट में मिन टर्म्स, जो हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में जितने मिन टर्म्स है उन सबको लिख लो। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे मिन टर्म्स थे 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15, उन सबको लिख लो, 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15। फाइन, नाउ इन सबकी एक कॉलम बना लीजिए। फाइन, अब हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट कितने थे, 3 थे, 3 प्राइम इम्प्लीकेंट थे, दैट इज बी बार सी बार एंड इज बी बार डी एंड दैट इज सी डी। फाइन, तो प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे जो थे, अब इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर, तो इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या होगा हमारा, द डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग टू द प्राइम इम्प्लीकेंट बी बार सी बार क्या था आपका, 0189, 0189। अब स्टेप नंबर 3 से चेक कर सकते हैं कि बी बार सी बार के सामने क्या क्या मिन टर्म्स है आपके। सिमिलरली द मिन टर्म्स फॉर बी बार डी के लिए क्या था आपका, 1, 3, 9, 11, 1, 3, 9, 11। Similarly, the corresponding decimal number for PI CD क्या था आपका, 3, 7, 11, 15। That is 3, 7, 11 और 15। अब हम इनका एक इस तरीके से रो बना देते हैं ऑल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के। नीचे हम रख कर देते हैं जो एक्स्ट्रा लाइंस है। नाउ अब जो जो हमारे मिन टर्म्स प्राइम इम्प्लीकेंट के करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर है, मिन टर्म्स के आगे हम उनको क्रॉस पुट कर दें, तो हम देखें 0189, तो 0 के आगे क्रॉस, 1 के आगे क्रॉस, 8 के आगे क्रॉस और 9 के आगे क्रॉस। सिमिलरली कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट बी बार डी। बी बार डी के करस्पॉन्डिंग आपके डेसिमल नंबर थे 1, 3, 9, 11, 1 के आगे क्रॉस कर दीजिए,
3 के आगे क्रॉस कर दीजिए, 9 के आगे क्रॉस कर दीजिए और 11 के आगे क्रॉस कर दीजिए. फाइन. सिमिलरली पुट द क्रॉस फॉर 3, 7, 11, 15 कॉलम. तो 3, 7, 11 और 15. फाइन. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू नाउ. अब हमें जितने भी मिनटर्म्स है, हमारे पास 8 मिनटर्म्स है, 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. हर एक मिनटर्म्स के लिए हम कॉलम वाइज देखें तो हर कॉलम में हम देखेंगे ऐसे क्रॉस को सर्कल कर दें जो एक कॉलम में सिर्फ सिंगल क्रॉस आ रहा है. तो हम चेक करें, कॉलम नंबर 0 में सिर्फ सिंगल क्रॉस आ रहा है, एक की जगह दूसरा क्रॉस नहीं, तो उसको हम सर्कल कर देंगे. मिनटर्म 1 के नीचे देखें कितने क्रॉस आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं. 2 आ रहे हैं मतलब एक से ज्यादा आ रहे हैं, उसको हम क्रॉस सर्कल नहीं करेंगे. सिमिलरली चेक फॉर 3, इसमें भी 2 क्रॉस आ रहे हैं, नहीं करेंगे सर्कल. 7 में सिर्फ एक ही क्रॉस आ रहा है, उसको हम सर्कल कर देंगे. सिमिलरली 8 में सिर्फ एक ही क्रॉस आ रहा है, उसको भी हम सर्कल कर देंगे. 9 में 2 क्रॉस आ रहे हैं, विल नॉट सर्कल. 11 में भी 2 क्रॉस आ रहे हैं, विल नॉट सर्कल दैट मिनटर्म. एंड फॉर 15 एक सिंगल क्रॉस आ रहा है, उसको भी हम सर्कल कर देंगे. नाउ वी विल चेक कि हम अब रो वाइज चेक करेंगे ऐसे कौन से मिनटर्म्स, ऐसे कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट हैं जिनके क्रॉस सर्कल्ड हैं. उनको हम ले लिए एक एडिशनल टर्म के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ईपीआई. ईपीआई मींस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके क्विन-मैक्लास्की मेथड में. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट इन विच वन और मोर मिनटर्म्स आर यूनिक. जिसमें एक या एक से ज्यादा मिनटर्म्स यूनिक हैं. हम पहले उन टर्म्स को लिख लेते हैं, फिर हम समझते हैं व्हाट इज ईपीआई विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंस विद द एग्जांपल गिवन इन दिस प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल. तो हम देख रहे हैं बी बार सी बार वाली रो में 2 जगह ऐसे क्रॉस है जो सर्कल्ड है. तो विल कंसीडर बी बार सी बार प्लस. नाउ अगेन वी विल चेक फॉर बी बार डी. बी बार डी के रो में कोई भी ऐसा क्रॉस नहीं है जो सर्कल्ड हो, तो हम इसको बी बार डी को नहीं लेंगे. सिमिलरली विल चेक फॉर सी डी. सी डी में अगेन एक या एक से ज्यादा क्रॉस सर्कल्ड होगा तो हम ले लेंगे. तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 क्रॉस सर्कल्ड है. अगेन विल टेक सी डी. So this is the EPI, and EPI signifies the reduced term for your Quine-Maklowski minimization technique. इसके आगे आपका रिडक्शन नहीं होगा. तो ये आपका रिडक्शन, आपका पूरा एक्सप्रेशन है यूजिंग द Quine-Maklowski मेथड. हम बात कर रहे थे कि EPI को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. हमें EPI का मतलब ये है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जो हमारे क्वेश्चंस में मिनटर्म दिए हुए हैं, that is 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. हमारा जो एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन के माध्यम से हर मिनटर्म्स कवर होना चाहिए. अगर मिनटर्म कवर नहीं हुआ है दैट मींस दैट इज नॉट द करेक्ट ईपीआई. हम चेक करें बी बार सी बार. बी बार सी बार के मिनटर्म्स क्या थे, 0, 1, 8, 9. अगर हम चेक करें तो 0 भी कवर हो गया, 1 भी कवर हो गया, 8 भी कवर हो गया और 9 भी कवर हो गया. अब अगर हम चेक करें सीडी, सीडी के मिनटर्म्स क्या थे, 3, 7, 11, 15. तो हम देखें 3 भी कवर हो गया, 7 भी कवर हो गया, 11 भी कवर हो गया, 15 भी कवर हो गया. मतलब इन 2 टर्म्स से हमारे जितने भी मिनटर्म्स थे 8 मिनटर्म्स कवर हो गए. अगर 8 मिनटर्म्स कवर हो चुके हैं तो हम बी बार डी को नहीं लेंगे, क्योंकि बी बार डी इज नॉट अ प्राइम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन क्या थी कि जिसमें एक या एक से ज्यादा प्राइम इम्प्लीकेंट्स यूनिक हो. तो हम देखें 0, 1, 8, 9 में ऐसी कौन सी यूनिक है जो कहीं नहीं है. तो हम चेक कर सकते हैं 0. 0 एक ऐसा मिनटर्म है जो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है. तो हम कह सकते हैं बी बार सी इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. सिमिलरली सी डी में देखें कैसा और एक यूनिक है, कम से कम एक से ज्यादा यूनिक हो सकते हैं. एक हम चेक करें सबसे पहले, हम चेक कर सकते हैं 7. 7 जो मिनटर्म है वो ना तो इधर है ना इधर है. तो यू कैन से दैट इट इज द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. नाउ विल चेक बी बार डी. बी बार डी में देखते 1 है तो 1 यहां पर है, इट इज नॉट यूनिक. 3 हम देखें तो 3 यहां पर है, तो अगेन इट इज नॉट यूनिक. 9 यहां पर, 9 जो यहां पर है इट इज देयर आल्सो, अगेन इट इज नॉट यूनिक. 11 जो है इसकी जगह पे यहां भी है, दैट मींस इट इज नॉट यूनिक, दैट मींस दिस इज नॉट ईपीआई.
So this is the answer, or we can say the reduced expression using Quinn-McCluskey method. I hope you understand this method. And अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे इन डाउट क्लियरिंग सेशन में. नेक्स्ट लेक्चर एक मैं और लूंगा क्विन-मैक्लस्की मेथड का, जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्विन-मैक्लस्की मेथड का अप्लाई कर सकते हैं मिन टर्म के साथ डोंट केयर टर्म के लिए भी. तो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ एंड बी एट होम. थैंक यू.